Welcome back to this physics class. My dear students, today we will study the few more concepts of class 12. As you know, already I have taught you the few important concepts of electrostatics, and today we will discuss few more. These topics are the base of electrostatics. Now, we will start from electric dipole. Question comes, what is electric dipole? So, we will start everything from electric dipole. This will be our topic today. As I told you in beginning that I will teach you in the mixed language, so you can understand the concept well. If any problem, let me know in my comment box. Okay, welcome to this class. Electric dipole क्या होता है? It is a system which is consists with two equal and opposite charges lying at a small distance. ये इक्वल अपोजिट चार्जेस का बना ऐसा सिस्टम होता है जो एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं. सपोज दैट वन चार्ज इज प्लस क्यू एंड अदर इज माइनस क्यू and they are kept at a small distance. Suppose that is small distance 2L, 2A, whatever. Why take 2L, 2A? Because when we start taking the middle point of that electric dipole to measure the intensity or potential, then it is easy to put a half L and L here, or A or A. Otherwise, L by 2, L by 2. So, other things would have been coming there. That's why we are supposing that 2L is the small distance between them. So, what is electric dipole? Electric dipole consists for two equal and opposite charges lying at a small distance. मतलब जब दो equal और opposite charges इस small distance पर रखे होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाइपोल. एग्जाम्पल क्या था? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. And next question comes, what is electric dipole? That dipole moment. Okay, what is dipole moment? पहले बात क्वेश्चन होता है डाइपोल मोमेंट निकालते क्यों है, जरूरत क्या है? क्या केवल मैथमेटिकली कुछ प्रूफ करने के लिए जरूरत उसकी है, या डाइपोल मोमेंट सच में कुछ होता है? The dipole moment always shows the intensity, okay, of this or strength of this electric dipole. Dipole moment क्या बताता है? किसकी? इसकी स्ट्रेंथ बताता है. किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल की. और फार्मूला क्या होगा? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फार्मूला इज दैट P is equal to magnitude of any charge, that is a Q into a small distance between them. So what is electric dipole? The dipole moment shows that the strength of this electric dipole, and which can be defined as the product of any charge, because both having same magnitude and a small distance between them. It is always a vector quantity. You know, in these days objective question is asked, they may ask electric dipole moment is what type of quantity, scalar or vector? So it is a vector quantity. And with the sign convection, if you want to see where the direction of it, अगर आप देखना चाहते हैं इसकी डायरेक्शन किधर है, it direction is always from negative to पॉजिटिव चार्ज. ओके, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब सोचो, कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है. तो पूछता है डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब अगर हम पूछे कि डाइपोल फील्ड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो डाइपोल फील्ड भी कुछ होगा. Till where you can feel this strength of this electric dipole, that is known as the dipole field. अगर डाइपोल के चारों ओर कोई फील्ड बनती है तो जहाँ तक उसका इफेक्ट को फेल्ट कर सकते हैं, दैट फील्ड इज नोन एज अ डाइपोल फील्ड. डाइपोल फील्ड व्हाट? इट इज अ स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दैट स्ट्रेंथ ऑफ द सेम इज कैन बी फेल्ट. ओके, so very important topic we will study. Already we have studied. What we have studied, my dear student? What we have studied till now?
already we have studied इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डाइपोल टुगेदर दो चार्जेस का हमने बोला था फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये एक चार्ज या क्लस्टर ऑफ चार्जेस से भी हो सकती है। चलो हम यहाँ दो चार्ज लिए हैं, इसका मतलब है डाइपोल से भी फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट होगी, तो आज हम वो निकालेंगे। द इंटेंसिटी कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टू पोजिशंस, वन वी विल गेट इन axial position, one in equatorial position. First see in axial position. This is two charges, minus q1 plus q, are lying at a 2l distance. Okay, from its center point O, from here to here at r distance point P पे हमें क्या निकालना है? We have to calculate the intensity of electric field. ठीक है, अब आपको मालूम है बेटा, बहुत इसका नाम हम लिख देंगे, डाइपोल का नाम ए बी है सपोज दैट। हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आउटवर्ड्स होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोज दैट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 है। इस नेगेटिव कारण क्या होगा? चार्ज की ओर होगा, और इसको हम मान लेते हैं क्या है? E2। क्लियर? इतना समझ में आ गया? दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दे कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर वील हैव टू कैलकुलेट एट पॉइंट P व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कुछ बात कर लेते हैं। E1 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। E1 पहले किसके कारण है? E1 इज बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? दिमाग लगाइएगा। यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस r है, और ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ से यहाँ तक की r माइनस एल। एग्री? प्लस Q से हमें E1 निकालना है, तो E1 का फार्मूला क्या बनेगा? देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर। फार्मूला Q बाई आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस R माइनस एल है, और डिस्टेंस मैंने बताया था किधर एलॉन्ग होगी? इस साइड है, इस साइड है मीन्स हम लिख सकते हैं एलॉन्ग BP, ऐसे जा रही, आउटवर्ड जा रही। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट E2 ऑल्सो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से जो डिस्टेंस टोटल P की होगी, यहाँ से यहाँ R है, ये L है, R प्लस एल होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगी? PA, टुवर्ड चार्ज है, उल्टा है, PA। अब आपको मालूम है दोनों रिएक्शन लाइन जो हैं E1 E2 की इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट E अगर हमें निकालना है तो रिजल्टेंट E क्या हो जाएगा? वेक्टर E1 माइनस E2, बिकॉज इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ पुट द वैल्यू, डायरेक्टली आई एम पुटिंग हियर। देखना जरा, दोनों में कॉमन क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, अंदर क्या होगा? 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइन अपॉन दिस इज R प्लस एल, सॉरी R प्लस एल होल स्क्वायर। When you will solve it, what will come? Q upon 4 pi epsilon naught. If you take LCM of this, it will become R square minus L square whole square, and here what will come? R plus L whole square minus R minus L whole square. And we have to solve it. Do we have a space? Yes. Now we will solve here. See. E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, common A plus B whole square, open it, R square plus L square plus 2RL minus R square minus L square plus 2RL, okay, because minus minus plus, upon R square minus L square whole square. This is cancelled,
and 2RL and 2RL become how much? 4RL. So what had come? E is equal to C 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L हम एक साथ लिख दिए, ओके, बिकॉज 2 into 4RL into 2R, देख लो आप कितना आ गया, दोनों मिला लो, 2 जा 4RL, हम ऐसा क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके. Q into 2L already we have studied what is called, that is called P, dipole moment. So this part I am going to erase it, so you can take a screenshot of that if you don't understand this. So this part I am erasing, so I can write here E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P into 2R upon R square minus L square whole square. Now understand, L is much less than R. Yes, L तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, 2L बहुत छोटा है, उसका हाफ और छोटा होगा, और स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा होगा, इसका मतलब L स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन में L स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपॉन, अगर ये गायब हो गया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स R पावर 4, this R power 4 would be cancelled, become cube, and we will get the final result here, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2P upon R cube. That is the formula of intensity of electric field in a axial position, because of whom? Electric dipole. Clear? डाइपोल के कारण कितना होगा आपके सामने है. ये था एक्सियल पोजीशन, माने एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे. अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग निकालेंगे. बहुत आसान है, कठिन नहीं है ये. एग्री? अब देखो, ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. दोनों आज खत्म करते हैं. माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस ओ हाफ हाफ कर दिया L, इससे यहाँ स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है. ध्यान से देखिएगा, प्लस Q के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो किधर जाएगी? आउटवर्ड. ये देखो, ये माइनस Q कारण इंटेंसिटी किधर आएगी? इनवर्ड. अगर ये एंगल थीटा है तो फाइनल E हमें यहाँ निकालना पड़ेगा. ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है. इस फिगर को हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. इस फिगर को यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं बस. ये हो गया E1, ये हो गया E2, और ये हो गया पॉइंट P जहाँ निकालना है. अब ध्यान से देखना. चलो, इस E1 और E2 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं. ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा है. ठीक है, इस फिगर को यहाँ ले आए हैं. E1 का हमने बताया थीटा से दूर वाला फंक्शन क्या होता है? साइन का. तो E1 साइन थीटा, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा इधर? E1 कॉस थीटा. इसी तरह इस E2 को ब्रेक करेंगे तो इस साइड क्या आएगा? E2 कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा? E1 साइन थीटा, सॉरी E2 साइन थीटा. अब ध्यान से देखिएगा, कितना आसान है. चाहे डिस्टेंस माइनस Q से, चाहे डिस्टेंस प्लस Q से, ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये डिस्टेंस कितनी होगी? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दोनों के डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? Q अपन R स्क्वायर. सो हम क्या देखेंगे? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट है. E1 E2 तो इक्वल ही है. तो फाइनली जो आएगा, जो हमें कैलकुलेट करना होगा, वो क्या होगा? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा. अब देखो, वैल्यू रख दो बेटा, कितना आसान है. E1 की वैल्यू देखो यहाँ से, प्लस Q से है, प्लस Q से है, तो फार्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर क्या है? रूट डिस्टेंस कितनी है? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो रूट
r square plus l square whole square cos theta प्लस सिमिलरली E2 की भी वैल्यू यही है 1/4πε0 q अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर cos थीटा। दोनों फंक्शन 2 टाइम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अब E इक्वल टू 2 इंटू 2 बार है तो 2 cos थीटा कर लिया और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा 2 इंटू इस ट्रायंगल में cos थीटा देखो सभी लोग, या इसकी इधर भी देख लो, ये थीटा है तो इसका हाइपोटेनस कितना है रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बेस कितना है l है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं l अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो जरा 2l इंटू क्यू या q इंटू 2l क्या बन जाएगा p, एग्री, अभी पढ़े थे q इंटू 2l इक्वल टू p, तो ऊपर हमने क्या बनाया 1/4πε0 p अपॉन, अब देखो जरा कुछ नहीं माने पावर 1/2, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है यहाँ 1 यहाँ 1/2, ये बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर वही केस बेटा, इफ l इज मच लेस देन r, इफ l इज मच लेस देन r तो ये l स्क्वायर क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 एंड 2 कैंसिल, क्या बचेगा r क्यूब। तो फाइनली क्या आएगा 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। In axial position answer had come 2p upon r cube, and in equatorial position E will come p upon r cube. So this is the difference. In next video we will study about the potential. Okay, so day after tomorrow I will put that video. Okay, so those who hasn't subscribed and share kindly do this if you like it. Thank you, have a nice day.